Hello, students, and welcome to E-Classroom of English. This is Harpreet once again with you for your English classroom. So, girls, today we are going to study a very interesting play. Yes, The Youngest Prince. It's a story of a young prince and a wise teacher. The prince was the youngest one, and how he had inherited his father's kingdom and become the king. कैसे उसने अपने राज्य का वो राजा बना, बीइंग द यंगेस्ट वन, यंगेस्ट होने के बाद भी कैसे वो अपने राज्य का राजा बना. सो लेट अस रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. द सीन फर्स्ट वॉज इन द किंग्स कोर्ट. राजा का जो कोर्ट था वहाँ पर ये सीन शुरू होता है. एंड द किंग वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑन द रॉयल पैलेस एंड ही वॉज सराउंडिंग विद हिज कोर्टियर्स. चारों तरफ उनके कोर्टियर्स बैठे हुए थे. सो किंग सेड टू हिज सन्स, अपने तीनों बेटों से उन्होंने कहा, 3 सन्स वर देयर, विक्रम, विराट एंड गामिनी. ठीक है. एंड ही सेड टू हिज सन दैट माय सन्स, यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन एंड यू हैव taken your education under the guidance of a very good teacher. So now it's time that you should serve your countrymen. You should help your different people of the country and the different provinces, different parts of the kingdom. Okay, so all the 3 princes replied that yes, your majesty. Okay, so let us see now what happens next. The youngest son, Gamini. Who was the youngest son? Gamini. He went to his teacher, and you can see the teacher. He was living in a village in a cottage, very small cottage. He went to the teacher and asked that what should he do, where should he go for helping the countrymen, and which province he should go for serving the people. So the teacher guided him. Teacher ने उन्हें जवाब दिया that instead of going to any other province, किसी और राज्यों में जाकर या किसी और part of the kingdom में जाने से अच्छा है that you should live here and help the people here only. Because if you will go from here, who will serve your father in this capital city? आपके फादर को कौन सर्व करेगा, उनकी सेवा कौन करेगा? So instead you should live here and you should collect the fees and taxes and also distribute the benefits to the people. जिससे फ़ायदा होगा, जो आप टैक्स कलेक्ट करोगे बड़े लोगों से या फिर आप जो फीस कलेक्ट करोगे उससे जो भी बेनिफिट होगा, यू शुड सपोर्ट द पुअर पीपल. इन दिस वे यू कैन सर्व योर प्रोविंस ऑल्सो, योर किंगडम ऑल्सो एंड योर फादर ऑल्सो. सो ही एग्रीड विद हिज टीचर. अपनी टीचर की बात उन्होंने मान ली एंड ही बोर्ड हिज हेड, अपना सिर झुकाया और वहाँ से चले गए. नाउ ही ट्राइड टू हेल्प ऑल द नीडी पीपल. बहुत सारे सिटीजन्स थे जो बहुत नीडी थे. सी देर आर मेनी पीपल हु नीड हेल्प and Prince Gamini tried to help them. He was very kind, he was very generous. एक हर जगह वो सबकी हेल्प करने की कोशिश करते रहे. वन ऑफ द सिटीजन वॉज लाइक ही वॉज नॉट एबल टू पे द टैक्सेस दैट ईयर. सो प्रिंस गामिनी ने क्या किया, ही हेल्प देम दैट सिटीजन एंड आस्क्ड दैट यू कैन पे द टैक्स नेक्स्ट ईयर. एंड वन मोर सिटीजन वॉज देयर, ही वॉज अ फार्मर एंड ही वॉज सेइंग दैट हिज क्रॉप हैज़ फेल्ड. उसकी सारी जो खेती बाड़ी है वो उजड़ हो चुकी थी एंड ही हैड नो फूड, ही हैड नो मनी. एंड यू नो व्हाट प्रिंस गामिनी डिड? Prince Gamini gave them money, food, cloth, and all the needy people you can see sitting here, they all gave blessing to Gamini. That long live Prince Gamini. Now many years passed and even the king was died. So what happened, you know, Prince Gamini to Raja ban gaye, but the other brother, see, you can see how they are fighting, they are arguing. Vikram, yes, Prince Vikram and Prince Virat, they both started fighting. Prince Vikram said, I am the eldest and I should become the king. But Prince Virat said that no, I am having a bigger province. My army is as twice as not yours. So what should be who should be the king? I should be the king. So here both of them, they started fighting, Vikram and Virat. One said, I am the eldest. Other said, I am having a big army. So they started fighting with each other and they said that we will have a battle tomorrow in the morning. उन्होंने कहा हम सुबह जंग लड़ेंगे और जो जीतेगा वो राजा बनेगा. नाउ व्हाट हैपन, यू नो, अगेन गामिनी वेंट टू द टीचर. अपने उसी टीचर के पास वो गए उनसे मिलने के लिए, बिकॉज उसने उनकी आर्ग्यूमेंट सुन ली थी अपने ब्रदर्स की. हु आर द ट्रू ब्रदर्स? विराट एंड विक्रम. सो गामिनी वॉज वेरी सैड. सो विथ हैवी हार्ट, बहुत उदास दिल के साथ वो अपने टीचर के पास दोबारा गए. देखिए उसी टीचर के पास. एंड सेड दैट what should I do? My brothers are fighting with each other. So the teacher answered him that you should not do anything.
जस्ट गो एंड सेंड अ मैसेज टू योर ब्रदर्स, अपने ब्रदर को एक मैसेज भेज दो दैट यू आर डिवाइडिंग योर किंगडम इनटू टू पार्ट्स, अपने राज्य को दो भाग में बांट रहे हो, एंड वन पार्ट विल बी फॉर ईच ब्रदर, दोनों भाइयों को एक एक पार्ट मिल जाएगा. नाउ व्हाट हैपन, यू नो, गामिनी ने अपने टीचर की एडवाइस फॉलो की. यू शुड ऑल्सो लिसन टू योर एल्डर्स एंड टीचर्स ना. सिमिलरली उन्होंने भी अपने राजा की बात, अपनी टीचर की बात मान ली. नाउ वट हैपन अगेन द सीन ऑफ द पैलेस. देखिए सभी राजा राजमहल में बैठे हुए हैं. इवन द किंग गामिनी सिटिंग देयर एंड ही गेव द मैसेज टू बोथ द ब्रदर्स दैट आई एम डिवाइडिंग द किंगडम टू इन बिटवीन बोथ ऑफ यू. दोनों भाई वहाँ नीचे खड़े हैं, उनको कहा कि आप दोनों में मैंने डिवाइड कर दिया है सारा किंगडम. एंड नाउ बोथ द ब्रदर रियलाइज दैट हाउ हम्बल द ब्रदर इज. उनका भाई कितना हेल्पफुल है, कितना सपोर्टिंग है, और हम कितने बुरे थे. वी वर ट्राइंग टू फाइट विथ हिम, हम राजा बनने के लिए लड़ रहे थे, बट ही इज़ सो गुड, ही इज़ सो नाइस, ही सो सपोर्टिंग. और फिर उन्होंने कहा दैट वी एक्सेप्ट यू एज द किंग, हम आपको एज अ किंग एक्सेप्ट करते हैं. एंड फाइनली फ्रॉम दैट डे किंग वॉज प्रिंस गामिनी. यस, गामिनी को ही किंग बना दिया गया था. एंड he said that we should always try to support everyone. So both of the brothers were very happy because of this. And now and finally king Gamini was the head of that area, of that province. He just owed all his happiness, all his success to his teacher. उन्होंने कहा आज मैं जो भी हूँ, वट एवर आई एम द किंग ऑफ दिस पैलेस, आई एम जस्ट बिकॉज द वाइज एडवाइस ऑफ द टीचर. जो मेरे टीचर ने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी थी, आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट टीचर आई एम स्टैंडिंग हियर. आई ऑल्सो ओ द यूनिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ माई किंगडम टू द टीचर. जो भी कुछ मैं हूँ और जो मेरे किंगडम में जितनी भी यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, वो किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर. एंड आई शैल ऑलवेज रिमेन वेरी ग्रेटफुल टू माई टीचर. So hope you got a good moral from this story that we should always listen to our elders, all our teachers. And second important moral we get is we should not be greedy. हमें लालच में नहीं आना चाहिए. बिकॉज वट एवर वी आर डूइंग हैव अनदर एक्सपेंस ऑन अस, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आता है. सो वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर सेइंग, वी शुड थिंक बिफोर दैट वट एवर. ठीक है. होप यू एन्जॉयड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इंटरेस्टिंग प्ले विच इज़ अडेप्टेड फ्रॉम अ जटाका टेल. Do watch this video more and more time, that how this beautiful and the youngest prince become the king of that kingdom. Okay, bye bye, take care, and thank you.